In this video, we will discuss the new subject, that is computer networks. It has two words, one is computer, another one is network. We are very familiar with what is computer. It is an electronic machine for using mainly for computations. And when we say networks, network is the new capability that being added to this computer word, which will enable these computers to talk to each other, to communicate with each other. That is called computer networks. And network में we always have set of nodes connected by some medium able to transfer data. What is network? network क्या है? हमारे पास multiple devices या computer, mobile हो सकते हैं. They are connected with some type of a medium. It may be wire or it may be wireless medium. Now the very first important thing here is that the data in one machine must be shareable at another machine, then only we call it as a network. If we simply take two computers and connect with the twisted wire cable and RJ45 connector, that will not call as a network until we will make the files shareable on one computer and this another computer is able to share those files on the next computer. So जब तक sharing possible नहीं है तब तक network नहीं हो सकता. Simply connection को हम network नहीं बोलते. So network is more than just connection. And यहाँ पे अगर हमारे पास network establish हो जाता है तो हम उस पर communication कर सकते हैं. Now what is communication? Communication means understanding. Communication मतलब क्या है? हमने बात करनी है और अंडरस्टैंड करनी है दूसरे की बात. सो डेटा कम्युनिकेशन कब आएगा इन पिक्चर? जब हमारे पास नेटवर्क आएगा. बिकॉज जब हम एक मशीन का डेटा दूसरी मशीन पे लेके जाएंगे देयर विल बी सो मैनी इश्यूज इन्वॉल्व. बिकॉज वन मशीन कैन हैव लाइनेक्स इंस्टॉल्ड, अनदर मशीन कैन हैव विंडोज ऑन इट, एंड it may be possible that the browser is different in one and another, and the file like one have doc, another has LibreOffice. So in this case there are so many we'll say difference between the computer machines talking to each other. So हमने एक ऐसा platform लेके आना है जिसके through irrespective of these differences machines are still able to communicate and talk to each other. So what is data communication? It is the exchange of data between the devices. कि हम data exchange कर पाएँ between the devices. अब यहाँ पे जो word बार बार आ रहा है that is data. What is data? Data is raw facts and figures. Now what do you mean by raw facts and figures? In this scenario, anything that is being written on any copy, any book, or in any computer hard disk is called data, because it is raw and it is just the facts and figures written somewhere. When we process that data, why data is so important? Because when we process this data, we'll do processing on this data. Processing means we'll perform some of the operation on the data and we'll get information. And the information is what we actually learned out of that data. For example, I have the data for the last 10 years, that how the share market goes, and what I have learned, the graph I have plotted, the processing I have done will give me some kind of information out of that data. And information is the foundation of the whole IT. IT is information technology, so it is the fundamental aspect of information technology. So data is very important in terms of computer network, because we are going to exchange the facts between one machine and another. For example, we are sending the messages on WhatsApp, so whatever we are sending can be considered as data, and it is exchange of data between the devices. In this subject, when we say that the context will not be user, इस केस में हम यूज़र एक यूज़र और दूसरे यूज़र की बात नहीं कर रहे हैं. We are talking about the machines here, that one data on one machine should be transferred to another machine and will be represented in a good manner, और वहाँ पे understand हो सके दूसरे machine पे. We are not talking about the users in this scenario.
Now there are some characteristics about data being shared between two machines. जब भी कोई नेटवर्क हमने इस्टेब्लिश करना है, जो डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल करवानी है, तो हमने मेजर करना है कि वो कम्युनिकेशन कितनी बेटर है या नहीं. तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए पैरामीटर्स हैं हमारे पास: डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलाइनेस एंड जिटर. जितने ये पैरामीटर्स की वैल्यू के बेसिस पे वी कैन डिफाइन कि दिस डेटा कम्युनिकेशन इज़ गुड और नॉट. फर्स्ट, जो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि ये रिक्वायरमेंट्स भी हैं, ये होना ही चाहिए इन एवरी नेटवर्क, इन एवरी डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क. सो इन दिस केस फर्स्ट इज़ डिलीवरी. डिलीवरी में आएगा कि फॉर एग्जांपल आपने एक पर्टिकुलर मशीन को मैसेज भेजा या आपने एक पर्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड किया, तो डिलीवरी मस्ट बी टू इंटेंडेड यूज़र. तो उसमें पहली चीज़ तो वो डेटा डिलीवर होना चाहिए उस मशीन पे. दूसरा, एक्यूरेट यूज़र जो इंटेंडेड है उसको मिलना चाहिए जाके. एंड इट इज़ नॉट दैट कि यू आर डिलीवरिंग द डेटा टू सम रॉन्ग एंटिटी. फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है किसी भी डेटा कम्युनिकेशन की या कंप्यूटर नेटवर्क की, वो है डिलीवरी टू एक्यूरेट यूज़र. उसको मिलना चाहिए जिसके लिए भेजा है. दैट इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया. सेकेंड इज़ एक्यूरेसी. एक्यूरेसी का मतलब होता है कि लेट्स से आपने मैसेज भेजा हेलो हाउ आर यू, तो दूसरे साइड पर मिला कि आई डोंट वांट टू टॉक टू यू लाइक समथिंग एल्स. जो आपने भेजा वो नहीं मिला, कुछ और मिला, तो हमें एक्यूरेसी नहीं मिली. तभी भी हमारे नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने का कोई फंडामेंटल यूज़ नहीं है. इफ़ डेटा इज़ डिलीवर्ड टू रॉन्ग पर्सन और नॉट डिलीवर्ड and the data which is been delivered to, let's say, right user but is not accurate, is also not of the use. So accuracy is also the characteristics कि जो डेटा मिला है वो करेक्ट होना चाहिए, वो आपने जो भेजा है सेम होना चाहिए और उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली वही होना चाहिए. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? टाइमलाइनेस. टाइमलाइनेस का मतलब है कि डेटा टाइमली मिलना चाहिए. टाइमली मिलना चाहिए, इसको ऑपोजिट बोल सकते हैं लेस डिले. डिले क्या है कि जब सेंडर ने सेंड किया और जब रिसीवर को मिला उसके बीच में जितना टाइम लगा उस चैनल पे उस डेटा को ट्रांसफ़र होने में, तो दैट इज़ कॉल्ड एज डिले. तो टाइमलाइनेस मतलब कम से कम डिले होना चाहिए. जितना डिले ज़्यादा होगा उतना ही प्रॉब्लमेटिक होगा. फॉर एग्जांपल मैसेजेस लेट्स हैव पार्टी एट 7, तो 7 PM से बाद अगर वो मैसेज मिलेगा तो उस मैसेज को डिलीवरी होने का कोई बेनिफिट नहीं है, ना ही उसकी एक्यूरेसी का कोई बेनिफिट है, क्योंकि हमने टाइम ही मिस कर दिया. सो एवरी नेटवर्क का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है. एक रिक्वायरमेंट है कि डेटा जो आप भेज रहे हो वो टाइमली ही डिलीवर हो. पहले है एक्यूरेट यूज़र को डिलीवर हो, दूसरा है बिल्कुल एक्यूरेट हो, थर्ड है टाइमली मिले. जब तक उसका यूज़ के बाद मिलने वाली चीज़ उसका यूज़लेस कंसिडर हो जाएगी. सो इन दिस केस टाइमली मिलना चाहिए. फोर्थ वन इज़ द जिटर. जिटर इज़ वेरिएशन इन डिले. वेरिएशन इन डिले का मतलब है कि लेट्स से जब आप वीडियो कॉल करते हो, इन दैट केस देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ डिले. डिले का मतलब है एक पॉज आता है बिटवीन द वॉइसेस. अब अगर वेरिएशन इन डिले, वेरिएशन मतलब जो डिले पॉज आ रहा है हर बार वो सेम है, तो उसको हम बोलेंगे जिटर की प्रॉब्लम नहीं है. अगर हर बारी जो पॉज आ रहा है, कभी बहुत ज़्यादा पॉज आ रहा है, कभी बहुत कम पॉज आ रहा है, तो इन दैट केस जो हमारी रिसीविंग मशीन है वो उसको गेट करने में ईजीली गेट नहीं होगा. और लेट्स यू आर टॉकिंग टू अ यूज़र ऑन द फ़ोन, वीडियो कॉल कर रहे हो, तो इन दैट केस जिटर ज़्यादा होगा तो बात करने में प्रॉब्लम होगी. अगर डिले ज़्यादा भी है लेकिन यूनिफॉर्म आ रहा है तो वो फिर भी अंडरस्टैंडेबल होता है. लेकिन डिले में वेरिएशन होए तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है. तो जिटर नहीं होना चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, टाइमलाइनेस होना चाहिए और जिटर कम से कम होना चाहिए इन अ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज़ द कंपोनेंट्स. वाई वी आर स्टडिंग कंपोनेंट्स? बिकॉज हमें देखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं, किस सिनेरियो में हम जो सब्जेक्ट है नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो इन दिस केस एक हमारे पास सेंडर मशीन है, एक हमारे पास रिसीवर मशीन है. देयर इज़ सम मीडियम कनेक्टेड है आपस में और सेंडर के पास एक मैसेज है. सेंडर जो मैसेज है वो रिसीवर के पास देना चाहता है. एंड वी हैव अनदर, द लास्ट थिंग इज़ प्रोटोकॉल.
प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल इज़ द मेन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटर नेटवर्क्स बिकॉज everywhere we are talking about this protocol, that protocol. So protocol is set of rules. Why we need to have set of rules? Let's say प्रोटोकॉल्स अगर होंगे तो अंडरस्टैंडिंग ईजी होगी. अगर हम हर बारी एक प्रोटोकॉल बना दें कि जैसे ही सेंडर लो सेंड करे, 0 सेंड करे या 5 zeros कंसेक्यूटिव सेंड करें, उसके बाद उसका ओरिजिनल मैसेज स्टार्ट हो जाएगा. तो रिसीवर को अगर ये ऑलरेडी पता होगा, रूल पता होगा, तो फिर उसको बार बार हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि नाउ दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द डेटा. सो दिस इज़ वन प्रोटोकॉल. अनदर प्रोटोकॉल है कि जैसे ही सेंडर अपना मैसेज ख़त्म करेगा, एंड करेगा, तो उससे पहले वो 5 कंसेक्यूटिव वंस भेजेगा. सो ऑल दीज सेट ऑफ रूल्स आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स. प्रोटोकॉल से हेल्प हो जाएगी कि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती और फास्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल है. अगर कोई प्रोटोकॉल ना हो देन एवरी टाइम हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो हमारी बैंडविड्थ भी वेस्ट होगी. तो वी हैव मेड सो मैनी प्रोटोकॉल जिसको दोनों मशीन्स फॉलो करती हैं और ईज़िली अंडरस्टैंड कर लेती हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन. एंड प्रोटोकॉल विल हेल्प द बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. We'll discuss protocol in a separate video lecture also. Next is the data representation. In this case, data का मतलब होता है, again I have already told, data is facts and figures. अब whatever we are sending through WhatsApp, हम जब email करते हैं या फिर हम वीडियो कॉल करते हैं, तो these are the data which we want to send from one machine to another. दैट इज़ टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एंड ऑडियो. लेकिन हमने कंप्यूटर जब अंडरस्टैंड किया है, तो व्हाट इज़ कंप्यूटर इज़ अ मशीन विच अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज. बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर, नथिंग एल्स. सो व्हाट इज़ बाइनरी? बाइनरी मीन्स ईदर 0 और 1. सो वील से कंप्यूटर अंडरस्टैंड ईदर 0 और 1. बट डू एक्चुअली कंप्यूटर अंडरस्टैंड zeros and 1? Computer doesn't understand zeros and ones also. Computer is an electronic device. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिर्फ जिसमें चिप्स हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चिप्स लगी हैं. तो अगर करंट फ्लो हो रहा है किसी चिप में, करंट फ्लो का मतलब है 1. करंट फ्लो नहीं हो रहा है, नो करंट फ्लो, तो 0. अब इस केस में चाहे वो रैम है या फ्लिप फ्लॉप्स हैं, अगर तो सर्किट कंप्लीट हो रहा है 1, करंट है तो 1, अदरवाइज 0. तो कंप्यूटर डजेंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. कंप्यूटर इज़ जस्ट मेड अप ऑफ चिप्स. सो अब हमने हर चीज़ को 0-1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 0-1 ये एक अनदर टॉपिक है विच आई डिस्कस इन सम अनदर वीडियो, दैट हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज बीइंग स्टोर्ड इन कंप्यूटर. सो यहाँ पे सिंपल एक ओवरव्यू है कि टेक्स्ट है जो हम मैसेजेस लिखते हैं, वो कंप्यूटर कैसे सेव कर लेता है अपनी मेमोरी में, बिकॉज मेमोरी में तो सिर्फ 0-1 ही स्टोर होगा. सो इन दिस केस टेक्स्ट को हम कन्वर्ट करते हैं स्काई में. सो लेट्स से ए का स्काई कोड है लेट्स से 65. नाउ विल कन्वर्ट दिस 65 इनटू बाइनरी 0101, जो भी इसका आंसर आएगा. उसके बाद इस 0101 को फिर वो जो वेव्स की फॉर्म में, जब एक कंप्यूटर से दूसरे में जाएगा तो या तो सिग्नल्स की फॉर्म में या वेव्स की फॉर्म में, अगर आगे ऑप्टिकल फाइबर है तो लाइट की फॉर्म में सेंड करेगा. सो टेक्स्ट को बहुत इजी कन्वर्ट कर लेते हैं हम. स्काई कोड होता है. स्काई कोड क्या होता है? हमारे कीबोर्ड पे जितनी भी कीज़ हैं उनका हर एक का यूनिक नंबर होता है. वो नंबर को वील कन्वर्ट इनटू बाइनरी लैंग्वेज एंड सिंपली उसको सेव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं. 1 के लिए लेट्स से हमने बोला है कि 5 वोल्ट जाएगा और 0 के लिए जाएगा 0 से 2 वोल्ट के बीच में. अगर वोल्टेज है लेट्स से 4 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में हम बोलते हैं 1 है, इसके बीच में है तो 0 है. सो वी कैन ईजिली सेंड दिस बाइनरी. नेक्स्ट इज़ द इमेज. अब जब हमने फ़ोटो भेजनी है, इमेज का देयर इज़ अनदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट टू स्टोर द इमेज एंड टू सेंड द इमेज. इमेज में हमारे पास जो स्क्रीन होती है दैट वी विल डिवाइड द इमेज इनटू लॉट ऑफ पिक्सेल्स.
पिक्सल क्या होता है? पिक्सल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द स्क्रीन। अब इस सिनेरियो में जब हमने बोला एक पिक्सल है, तो जब पहले से हमारे पास थे वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट था स्क्रीन, तो अगर ये ब्लैक एंड वाइट है तो अगर किसी पिक्सल को ग्लो कराना है सो आई कैन राइट 1, अगर किसी पिक्सल को ग्लो नहीं कराना है तो 0। सो लेट्स से हमने A लिखना है, सो इन दैट केस वी विल ग्लो दीज पर्टिकुलर पिक्सल्स। लेट्स से अगर मैंने ये वाली पिक्सल्स को ग्लो करा दिया तो A बन जाएगा ऑन द स्क्रीन, तो दिस इज़ वन इमेज। लेकिन एक्चुअली में इसकी डेफिनेशन कैसे स्टोर होगी, कब मेमोरी में कैसे स्टोर होगी? पहली पिक्सल ऑफ है 0 0 0, फोर्थ वाली को ग्लो कराना है, फिर 0 0 0, फिर 0 0 1 0 1 अप टू सो ऑन। ये हमारी पिक्सल डेफिनेशन है जो कि ब्लैक एंड वाइट में ऐसे होगी। अब मान लो कि कलरफुल आ गया। कलरफुल में क्या है? RGB होता है। पहले RGB आया था, रेड ग्रीन ब्लू। अब रेड ग्रीन ब्लू में हर पिक्सल में जो डेफिनेशन स्टोर करनी है वो 3 बिट्स की हो जाएगी। 3 बिट्स की डेफिनेशन का मतलब क्या है कि पहली पिक्सल में अगर आपने रेड कलर देना है तो उसका कोड होगा 100, अगर रेड ग्रीन दोनों देने हैं तो 110। तो ऐसे करके हम कॉम्बिनेशन देते हैं, तो फिर उस पिक्सल की जो नंबर ऑफ़ बिट्स हैं वो बढ़ जाएंगी। सो इन दिस सिनेरियो पिक्सल डेफिनेशन इंक्रीज़ हो जाएगी इन केस ऑफ कलरफुल। अभी हमारे पास हाई डेफिनेशन है। जब हम कहते हैं HD का मतलब क्या है कि पिक्सल की जो डेफिनेशंस हैं दैट विल कंटेन मोर नंबर ऑफ बिट्स रेदर देन 3 बिट्स। देयर विल बी मोर नंबर ऑफ बिट्स, देयर कैन बी 24 बिट्स, 64 bits for one pixel, up to so on. Like how much accuracy and how much clarity you want, the number of pixels will increase. So that is how computer store an image. Now when the computer stores an image, in terms of zeros and ones, and when we will send the picture, in that scenario this zeros and 1 will be simply sent as 5 volt and 0 volt. So in that context there will be not any difference कि you are sending a photo or you are sending text. Computer will not differentiate whether this is an image or a text. It is just a representation of this zeros and ones into some image will be done at the receiver side, but while sending we are just sending zeros and ones. Next becomes is the video. Video is collection of images. So वीडियो क्या है? बहुत सारी इमेजेस को अगर आप इकट्ठा प्ले कराओगे इकट्ठा तो उसको हम बोलते हैं वीडियो। तो वीडियो का जो अंडरनीथ प्रिंसिपल है दैट इज़ ऑल्सो सेम विद द इमेज। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग टू इट, दैट इज़ ऑडियो, विच इज़ बिट डिफरेंट फ्रॉम वीडियो एंड ऑडियो। इन दिस केस ऑडियो में क्या है कि जो हमारा कंटिन्यूस होती है हमारी सिग्नल, उस केस में ब्रेक नहीं होता है ऑडियो में। तो उस केस में हम क्या करते हैं, विल कन्वर्ट दिस ऑडियो सिग्नल टू द डिजिटल सिग्नल। वो वी विल डू द टेक्निक लेटर ऑन। इसमें किसमें हम सैम्पलिंग कर सकते हैं कि इस टाइम फ्रेम पर इसकी वैल्यू कितनी थी। लेट्स से 6, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 9, फिर 11। सो हम हर एक इंटरवल पे वैल्यू मेजर करते हैं कि किस इंटरवल पे उसकी वैल्यू कितनी थी। लेट्स से यहाँ पे 6 9 हमने रिकॉर्डिंग कर लिया। अब इस 6 9 और 11 को वी विल कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी कोड। सो 6 का कोड क्या होगा, 9 का कोड क्या होगा, देन विल सेंड दीज zeros and ones. Again this will be 0 and 1, this will be zeros and ones. So we'll send this zeros and ones instead of a song. So on the receiver side, when this zeros and ones, the receiver machine will convert it into an audio signal by this knowledge कि ठीक है यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो they will make a audio signal out of a digital signal. So everything, whatever data we are talking about in today's scenario, it will be further converted into binary zeros and ones, and this zeros and ones are represented into signal. So there is one another concept, data versus signal, क्योंकि most of the students are confused between what is data and what is signal. Data is actually what we want to send, जो हम भेजना चाहते हैं, that we call as data. And signal क्या है? Signal is a carrier.
कैरियर है जो कि उस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएगा। सिग्नल इज़ लाइक द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल सकते हो, लाइट बोल सकते हो, ऑप्टिकल फाइबर में, कॉपर वायर में वोल्टेज बोल सकते हो। सो signal will carry this data from one part to another and what actually travels is signal not the data। जो एक्चुअली में ट्रैवल होता है वो कॉपर वायर में वोल्टेज ट्रैवल होगी, ऑप्टिकल फाइबर में लाइट वेव्स ट्रैवल होंगी और वायरलेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल होंगी। सो दोज वर द सिग्नल्स विच विल कैरी द डेटा एंड डेटा को वी हैव रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ बाइनरी। अब रिसीवर साइड पर कैसे होगा, अगेन ऑपोजिट, विल कन्वर्ट दैट बाइनरी डेटा इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग टाइप ऑफ डेटा एंड उसको कॉरेस्पॉन्डिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जो उसको फिर रिप्रेजेंट करेंगे एंड यूज़र को सेम डेटा मिल जाएगा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। This is very first lecture and in the next video I'll discuss the nodes. Thank you for watching the video. If you have any doubts, please let me know in the comment section. Thank you.